Hello students. In this lecture we want to study the movement of electrons in organic reactions. That is, it is again basic concept of a general organic chemistry. बहुत बड़ा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. When the reactants are converted into product, the number of reactions या फिर number of mechanism, number of factors which are responsible when the reactants are converted into product. तो उसमें का एक part है, that is the movement of electrons in organic reaction. In last video we have been seen about the bond fission. So when the reactants are converted into product, first there is a breaking of a bond break होता है, then there is a reactants are attack. ये देखा अपन ने, that is either electrophile या फिर nucleophile, and then the products are formed. तो ऐसा अपन ने देखा था इसके पहले. अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस. अब इसकी क्या आवश्यकता है अपने को, व्हाट इज द रीजन. जैसा देखो, अब अपन ने बोला है ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड. अब सपोज हियर CH4 is treated with bromine. अब यहाँ पर the outermost shell of a carbon is completely filled. outermost shell अगर Br अपन ने ऐसा लिखा Br, the outermost shell of a Br is also complete. और अपन ने पता है if the central atom contain 8 electrons in their valence shell, outermost shell, then it is the most stable. अब ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तो रिएक्शन कैसे होगी. क्लियर. Reaction, but there is a formation of a product. So why is it so? Because of a migration of electrons. And this migration of electron is also called a polarization या फिर displacement in presence of a suitable reagent. Clear? And then some of the bonds becomes weak, gets broken in presence of a catalyst, temperature, pressure, या फिर in presence of attacking reagent or other number of factors, and then there is a formation of fragments form होते हैं. अपन ने देखा fragments एक तो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या फिर फ्री रेडिकल ये फॉर्म होते हैं. और उसके बाद में दे कंबाइन together, free radical combine with free radical, nucleophile negatively charged attack on positively charged attack on negatively charged, and formation of a new bonds and formation of a product. Clear? So all are belongs to this class, that is called a general organic chemistry, या फिर simply it is called a reaction mechanism. इसको क्या बोलते हैं अपन, reaction mechanism. तो इसमें पहला पार्ट देखा अपन ने बॉन्ड फिशन, और उसके बाद में नेक्स्ट वन इज अटैकिंग रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स और फ्री रेडिकल्स. अब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, दैट इज द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर from one atom to another atom, that is called polarization or displacement, is controlled by 4 factors. One is called inductive effect, second one is called electromeric effect, third one is called resonance या फिर we can say mesomeric effect, and fourth one is called hyperconjugation. And these 4 factors are responsible for the breaking या फिर polarization of a covalent bond, and that also explain the stability and other properties of a reagent या फिर substrate या फिर product. तो आप देखेंगे अपन वन बाय वन. तो पहला अपन स्टडी करेंगे यहाँ पर अब इंडक्टिव इफेक्ट. तो देयर आर 4 फैक्टर्स. वन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, third one is called resonance, and fourth one is called hyperconjugation. तो डिटेल वन बाय वन अपन स्टडी करेंगे. these are very very important. जब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस अपने को समझना है, द नंबर ऑफ टॉपिक्स इन आवर सिलेबस, द नंबर ऑफ होमोलोगस जैसे अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइंस है, बाद में बेंजीन है,
या फिर अल्किल हैलाइड है, हेलो अल्केन, हेलो अरेंज, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, उसके बाद में अल्डेहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में देखा अपन ने दैट इज द अमाइंस है, नाइट्रो कंपाउंड्स है, डायजोनियम सॉल्ट है। ये सभी में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन, यूजेस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इतना सब कुछ अपने को स्टडी करना है। तो ये सब के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिक थिंग में पहला आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर, उसके बाद में बॉन्ड फिशन, उसके बाद में अटैकिंग रिएजेंट, उसके बाद में रिएक्टिव इंटरमीडिएट, उसके बाद में माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये सब पार्ट जब अपन होली स्टडी करेंगे तब अपने को ख्याल में आ जाएगा कि रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस याद करना कितना सिंपल है। तो ये बार बार अपने को रिवाइज करते रहना पड़ेगा, तब के जाके ऑर्गेनिक रिएक्शन अपने दिमाग में फिक्स हो जाएगी। देखो पहला दैट इज वन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब व्हाट इज मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट? इट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल आई। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? Inductive effect, that is a permanent polarization of inductive effect, that is the permanent polarization of electron shared pair, permanent polarization of electron shared pair towards more electronegative atom, when more electronegative atom, when these are joined together by a single covalent bond, when joined together by a single covalent bond। तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर, जब सिंगल बॉन्ड अपन कंसिडर करते हैं, व्हेन द सिंगल बॉन्ड इज कंसिडर्ड, देन देयर इज ए माइग्रेशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर कंसिडर करेंगे अपन? सिंगल बॉन्ड यानी माइग्रेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर। कैसे? देखो फॉर एग्जांपल सपोज कंसिडर हियर CH3 CH2 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 Cl, क्लियर? दैट इज कॉल्ड N-ब्यूटिल क्लोराइड, क्लियर? क्योंकि यहां पर द इंपॉर्टेंट इसेंशियल कंडीशन फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज the two atoms having a large electronegativity difference joined together by single bond sigma bond। तो यहाँ पर the electronegativity of Cl is higher than carbon, electronegativity of Cl is higher than carbon। तो then what happen here? अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है, ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना है कार्बन और Cl, one electron given by कार्बन एंड वन इलेक्ट्रॉन गिवन बाय Cl। यहां पर भी दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, क्लियर? अब दोनों ने जब इक्वल शेयरिंग किया तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर है, दीज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। दोनों से भी दोनों का डिस्टेंस क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन पेयर का सेम चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Cl क्या है? थोड़ा सा ज्यादा होशियार है, जबकि यहां पर इक्वल पार्टनरशिप है कोवैलेंट बॉन्ड में, लेकिन Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से दिस Cl अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद के पास वो खींच लेता है। तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Cl। तो Cl के पास दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज स्लाइटली शिफ्टेड, सो इट अक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके पास से दूर चले गई सो इट अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड। बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है यहां पर, क्लियर? तो हियर शिफ्टिंग ऑफ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, समझ में आ गया? अब इसके ऊपर
निगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आएगा। अब इलेक्ट्रॉन यानी कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर अगेन स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड द मोर। समझे, इसको C1 बोलेंगे, इसको C2 बोलेंगे, C3 और C4 बोलेंगे। तो इट अक्वायर अगेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चलेगी, क्योंकि ये C1 अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पेयर खुद के पास खींच लिया उसने। क्लियर। अब खुद के पास खींचने की वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या हो गया? अगेन दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इट अक्वायर अगेन positive charge but less than that of the C1 and C2. Clear? And this displacement of a electron shared pair, this displacement of electron shared pair towards more electronegative atom, it is called a inductive effect. इसको क्या बोलेंगे अपन? Inductive effect. Displacement of a electron shared pair towards more electronegative atom, इट इज कॉल्ड ए इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ गया। तो यहाँ पर Cl पर निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि लार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गई। समझ में आ गया। समझो ये होगा कार्बन 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4। तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट अक्वायर पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर C2 के तरफ शिफ्ट होगी। इट अक्वायर अगेन पार्शियल निगेटिव चार्ज। लेकिन इसमें ख्याल में रखने का, द पार्शियल निगेटिव चार्ज ऑन ए C2 इज लेस देन C1। द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, partial positive charge on C2 is less than partial positive charge on C1. Partial positive charge on C3 is less than that of the C1 and C2. And जैसे जैसे अपन Cl से दूर दूर जाते जाएंगे, as the distance from the more electronegative atom increases, the effect of inductive effect decreases. Clear? The effect of inductive effect decreases. समझ में आ गया? तो ये होगा अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या क्या पॉइंट अपन ने ख्याल में रखने का, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस, दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी देखा अपन ने लाइक दैट। तो पहला हियर व्हाट हैपन, द स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ, व्हाट हैपन हियर, स्लाइट displacement of sigma bonded electron shared pair. Slight displacement of sigma bonded electron shared pair. Clear? कब होगा? It is observed. It is observed when the atoms are joined together by a single covalent bond with large electronegativity difference. Single covalent bond with a large electronegativity difference. ख्याल में रखने का। तो यहाँ पर तो इंडक्टिव इफेक्ट, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए sigma bonded electron shared pair, and it is observed when the atoms are joined together by a single covalent bond with a large electronegativity difference. Clear? तो यहाँ पर when electron pair is shifted, so without breaking of a bond, the shifting of electron pair, that is without breaking the bond, and we can say that is without leaving the octet, and hence what happen, they acquire partial positive charge and partial negative charge, del positive and del negative charge. तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा
that is the more electronegative acquire partial negative charge or less electronegative acquire partial positive charge. Clear? अब यहां पर there is no need of attacking reagent. नीड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, यहां पर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट की आवश्यकता नहीं है शिफ्टिंग के लिए. क्लियर? और उसके बाद में एज द डिस्टेंस फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, as the distance from more electroatom increases, that is the inductive effect falls, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी. क्लियर? जैसा अभी देखा अपन ने Cl अक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये हो गया पहला कार्बन एटम, ये हो गया दूसरा कार्बन एटम, तीसरा कार्बन एटम, चौथा कार्बन एटम. तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर इधर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आगे नहीं होगी. दैट इज एज द डिस्टेंस from the more electronegative atom increases, the inductive effect falls. That is after 2 or 3 carbon atom या फिर 3 और 4 carbon atoms के बाद में inductive effect नहीं बताएगा. और यहाँ पर this C1 acquire more positive than C2 is more positive than C3. Clear? उसके बाद में now it is indicated by arrow. It is indicated by arrow, shows the direction of shifting of electron shared pair, shows the direction of shifting of electron pair, shows direction of shifting of electron shared pair. समझ में आ गया? तो ये हो गया about the inductive effect, that is the slight displacement of a bonded electron share pair, the sigma bonded electron share pair. It is observed when the atoms are joined together by single covalent bond with a large electronegativity difference. This is the important condition. Here there is no breaking of a bond, only that is the leaving of a octet. This electron pair is shifted towards more electronegative atom. They acquire partial positive and partial negative charge. There is no need of attacking reagent. Attacking reagent की आवश्यकता नहीं है. और as the distance from the more electronegative atom increases, that is after 3 or 4 carbon atom, the effect of inductive effect falls. Clear? और it is indicated by such type of arrow, या middle में arrow बताने का. That is shows the direction of shifting of electron share pair. And it is denoted by, there are types. One is called positive inductive effect and another one is called a negative inductive effect. It is called positive inductive effect or it is called negative inductive effect. So there are two types of inductive effect, positive inductive effect और negative inductive effect. अब पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है देखो. अब यहां पर पहला पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लेंगे अपन. अब व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जैसा अपन ने एग्जांपल लिया, जैसा यहां पर लिखे अपन ने CH3 CH2 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 Cl. क्लियर? तो Cl हैज ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स itself, so it acquire a negative inductive effect. Or these groups have a tendency to repel the electron shared pair away from itself, then they shows a positive inductive effect. Clear? तो positive inductive का effect का मतलब क्या होता? That is a species which contain an atom which has a tendency to repel the electron shared pair away from itself. To repel the electron shared pair away from itself, then the effect is observed, that is called a positive inductive effect. जैसा आप ही बोला मैंने, like that, यहाँ पर अगर हैलोजन एटम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव.
ये हो गया लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, खुद के पास खींचेगा, तो इट अक्वायर पार्शियल निगेटिव चार्ज, इट अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल कर रहा, तो इट अक्वायर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दिस एक्स गेन्स द इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर, खुद के पास खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो इट शोज ए माइनस निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट।